गुड मॉर्निंग. आवाज येतोय माझा? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. चलो. So we are dealing with topic digestion and absorption. Check. So good morning champions. We are dealing with topic digestion and absorption. और उससे हम बात करें दोस्तों digestion of food. And digestion of food occur at a 4 level: in mouth, or that is oral cavity; in stomach; in small intestine. Small intestine is the principal site of digestion and absorption. It is a principal site or main site of digestion as well as absorption. And little bit digestion and absorption also occur in large intestine. So हमने देखा कि in oral cavity there are two important structure. One is the teeth, another is the tongue. Teeth are responsible for the breaking down of larger food particle into the smaller one, and that process is called the mastication. And with the help of saliva and the movement of tongue, as tongue is the voluntary organ, it is a muscular and movable and voluntary organ. With the help of that saliva and movement of tongue, okay, it is easy to swallow that food. It causes, before swallowing, that food is thoroughly mixed. These broken down food particles are thoroughly mixed. They get lubricated and they get adhered. Adhered means join with each other and to form a structure that is called as a bolus. Bolus means that is adhered food particles or jointed food particles. उसे कहते हैं adhered food particles, that is a bolus. And वो जो bolus है दोस्तों, that bolus is swallowed, or swallowing is called as a deglutition, and swallowing is done with the help of tongue. ये हमने देखा. So these are the mechanical process. But is there, do you know that there are 3 pair of salivary glands located on outside the buccal cavity? These are parotid, submandibular, also known as a submaxillary or sublingual gland. And these glands secrete saliva, okay, via duct inside the buccal cavity. And that saliva contain many electrolytes like sodium, potassium, chloride, bicarbonate, ion, and that contain very important enzyme. उसका नाम है salivary amylase और tyline. और अनदर एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है और वो भी एक एंजाइम है, उसका नाम है लाइसोजाइम. तो देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द एक्शन ऑफ salivary amylase, okay, in oral cavity. Now amylase means this is an enzyme which causes breakdown of दोस्तों amylin, और amylin is nothing but the starch. तो let's discuss about the digestion in mouth. वही पार्ट कंटिन्यू करते हैं और फिर स्टमक की तरफ बढ़ते हैं. That is digestion of food. We are dealing with digestion of food in mouth or oral cavity. In mouth or oral cavity.
The digestion is started, digestion is initiated in oral cavity. MCQ. Now दोस्तों, that saliva contain two important enzymes, that is the salivary amylase and lysozyme. Now please pay attention. That is saliva contains two important enzymes. बाकी का मैं कंटेंट लिख के दूंगा बाद में. Two important enzymes. Saliva contain two important enzymes. That is number one दोस्तों, number one उसका नाम है salivary amylase. अभी पहले एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसा है कि कोई भी उसका जो सबस्ट्रेट है, अगर उसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसी के नाम के आगे एज आएगा, ASC. ASC मींस ये एंजाइम है, ASC मींस एंजाइम है. अमाइलेज मींस ये अमाइलिन को ब्रेक डाउन करेगा. अमाइलिन म्हणजे स्टार्च है, सलाइवरी अमाइलेज. और इसका दूसरा नाम है दोस्तों, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ टाइलिन. इसका दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ टाइलिन. इसका दूसरा नाम है दैट इज अ टाइलिन, और लोग उसे मैं बोलता हूं पटाइलिन. ये टाइलिन है सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम. नाउ और एक एंजाइम होता है दोस्तों जिसका नाम है लाइसोजाइम. नाउ ये जो लाइसोजाइम है ना, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है एक्चुअली. ये इसका एक्शन एंटीबैक्टीरियल है, इसीलिए हमारे माउथ में या फिर ओरल कैविटी में दोस्तों इन्फेक्शन नहीं होता है इजीली. ओके, क्योंकि ये सलाइवा में हमारे ये एंजाइम है लाइसोजाइम, इट कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. इसलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती नहीं है, वहीं पे वो किल किए जाते हैं. तो ये लाइसोजाइम इज एंटीबैक्टीरियल है. और सलाइवरी अमाइलेज. नाउ सलाइवरी एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है दोस्तों? सो ओरल कैविटी में सिर्फ स्टार्च जो है, स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट, उसी का ब्रेकडाउन होता है, उसी का डाइजेशन होता है. सो starch is broken down into दोस्तों, starch is broken down into maltose with the help of salivary amylase. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. मान लो क्या होता है, नंबर वन ये है स्टार्च. डू यू नो दैट प्लांट स्टोर रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज. एक्चुअली पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज है स्टार्च. इसका दूसरा नाम है अमाइलिन. एक है अमाइलोपेक्टिन, ओके, और दूसरा होता है दोस्तों अमाइलोज. ऐसे स्टार्च के अलग अलग नाम है. और ये जो स्टार्च है, हम बात करें दोस्तों कहां पे? माउथ में और ओरल कैविटी में. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है दोस्तों सलाइवरी अमाइलेज. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, दिस स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज. द स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज. माल्टोज एक डाइसैकेराइड है. स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है. माल्टोज क्या है दोस्तों? एक डाइसैकेराइड है. पॉलीसैकेराइड मींस जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स में मोनोसैकेराइड होते हैं, वो पॉलीसैकेराइड है. और जिसमें दो ही मोनोसैकेराइड है वो होता है डाइसैकेराइड. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो रेड में लिख रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? ओके, व्हाट इज द ऑप्टिमल पीएच टू कैरी आउट दिस रिएक्शन? 6.8 इज द आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू. 6.8 pH लगेगा. और हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन माउथ और ओरल कैविटी? आंसर इज दोस्तों दैट इज 30% ऑफ स्टार्च. यहां पे लिखता हूं कितना? 30% ऑफ स्टार्च. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड दोस्तों इन ओरल कैविटी इटसेल्फ. याद रखो, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज 30% ऑफ स्टार्च. हाइड्रोलिसिस मींस ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे कि अमाइलेज, प्रोटीएजेस, लाइपेज, न्यूक्लिएजेस, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ऑल आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मींस दे causes the breakdown of larger molecule into smaller one with the help of water. तो ये है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. सो 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, इज डाइजेस्टेड. ये एमसीक्यू आएगा. 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, ओके ओके, इन हाइड्रोलाइज्ड इनटू दोस्तों इनटू माल्टोज, इनटू माल्टोज इन, और हाइड्रोलाइज्ड इन ओरल कैविटी और माउथ. ओरल कैविटी और माउथ, ये याद रखो. ओके, ये याद रखो दोस्तों. और जो एंजाइम है इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज. सिर्फ अमाइलेज क्यों नहीं, सलाइवरी अमाइलेज ऐसा क्यों? क्योंकि एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है जो पैनक्रियाटिक जूस में होता है.
और ये है सलायरी अमाइलेज. आर यू गेटिंग मी और नॉट? समजते? ओके, इथं लिहितो लक्षात ठेवा, पुढे लिहितो दॅट इज सलायरी अमाइलेज. सलायरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है जिसका दूसरा नाम है टाइलिन और पटाइलिन. सलायरी अमाइलेज और जिसको कहा जाता है दोस्तों टाइलिन, याद रखो ये भी आएगा. कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ, कॉजेस दोस्तों ब्रेकडाउन ऑफ, causes breakdown of starch, causes breakdown of starch into the that is a maltose. maltose एक डाइसैकेराइड शुगर है, याद रखो, into the maltose. याद रखो pH है at pH 6.8. ये भी क्वेश्चन आता है at pH 6.8. हमेशा याद रखो ये जो स्टार्च है दोस्तों ये है पॉलीसेक्राइड. ये स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड मींस इसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड होते हैं और मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज. सैक्राइड का मतलब होता है शुगर, और ये माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है. ये कभी मत भूलो, ये क्या है दोस्तों? ये डाइसेक्राइड है. डाई मींस 2, दिस इज एन डाइसेक्राइड माल्टोज. इसमें 2 ग्लूकोज होते हैं. ये क्लियर है रिएक्शन? स्लाइड नंबर 1 ही रिएक्शन क्लियर है का सांगा? स्लाइड नंबर 1 इज दैट क्लियर? मींस टोटल जितना भी स्टार्च का डाइजेशन होता है, सपोज हम 100% स्टार्च लेते थे, उसमें से 30% स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में होगा. आर यू गेटिंग मी? नो, जितना भी स्टार्च हमने लिया है माउथ में, जितना भी स्टार्च है उसमें से 30% स्टार्च ओरल कैविटी में ही माल्टोज में कन्वर्ट होगा. इसका मतलब ये है ओके, जितना भी हमने स्टार्च लिया है 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन ओरल कैविटी और रिमेनिंग स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन दोस्तों दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ऐसा इसका मतलब है. कळतं का? स्क्रीनशॉट कोण घेत आहे? ओके, पीएच काय असतं? पीएच ऍसिडिटी असतं बेटा. ठीक आहे, ठीक आहे. कोण घेता? ऋतुजा घेते का? ओके, कोण घेतं? घेतलंय का? प्रत्येक. ठीक आहे, प्रत्येक. माल्टोज शुगर आहे. माल्टोज काय? शुगर है. स्टार्च भी एक शुगर है, माल्टोज भी एक शुगर है. मैं सब समझा दूंगा. हम बात करें दोस्तों डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ और ओरल कैविटी. सलाइवा कंटेन 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम, एक है सलाइवरी अमाइलेज जिसका दूसरा नाम है टाइलिन और एक है लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल है. नाउ स्टार्च, हम जो फूड खाते हैं उसमें स्टार्च नाम का एक बड़ा सा शुगर मॉलिक्यूल है जिसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है. उसको ब्रेक डाउन करके एक छोटा शुगर का मॉलिक्यूल है जिसे कहा जाता है डाइसैकेराइड. डाई मींस इसमें सिर्फ 2 ग्लूकोज है. इसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है स्टार्च में, और इसमें सिर्फ 2 ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. ये माल्टोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. माल्टोज एक छोटा शुगर है, ये बड़ा शुगर है. तो ये कौन करता है? तो ये एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज. स्टार्च का दूसरा नाम है अमाइलोज. स्टार्च का दूसरा नाम क्या है? स्टार्च इज आल्सो कॉल्ड अमाइलोज. ये कहीं तो भी लिखता हूं. स्टार्च का दूसरा नाम है दोस्तों अमाइलोज और अमाइलोपेक्टोज, और भी एक है. अमाइलोज मीन स्टार्च, और उसको ब्रेकडाउन, अमाइलोज को ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम अमाइलेज. नो, पीएच क्या होता है? एसिडिटी नापने का एक पैरामीटर है पीएच. इससे हम अगर 7 है तो न्यूट्रल होता है, 7 से 14 के बीच में अगर पीएच है तो अल्कलाइन है, और 1 to 7 के बीच में है तो वो एसिडिक होता है. ये स्लाइटली एसिडिक कंडीशन है, स्लाइटली एसिडिक. पीएच कितना है? 6.8 पीएच. पीएच कितना है? पीएच मींस ये एसिडिटी नापने वाला पैरामीटर है, वो 6.8 है. बिलो 7 है तो स्लाइटली एसिडिक कंडीशन है. तो वहां पे जितना भी स्टार्च ओरल कैविटी में अवेलेबल है उसमें से 30% स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है. हाइड्रोलिसिस मींस ब्रेकडाउन होता है इनटू माल्टोज, और रिमेनिंग स्टार्च वैसे के वैसे जाएगा नीचे इसोफेगस में, स्टमक में, और फिर बचा हुआ स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन किया जाता है. तो ये याद रखो. अब क्लियर है? इज दैट क्लियर हो? इज दैट क्लियर? अब क्लियर है? ओके. हाँ, कोण घेतोय स्क्रीनशॉट सांगा? कोण घेतोय स्क्रीनशॉट? प्रत्येक घेतोय, प्रत्येक वाडे. ठीक आहे, कोण घेतं? प्रॉपर त्याने ते स्लाइड नंबर वगैरे पाठवा त्याला. आय विल टेक स्क्रीनशॉट. एक जण कोणीतरी सांगा, एक जण. ठीक आहे, जयदीप कवाळे घेऊया. ठीक आहे, जयदीप कवाळे. जयदीप कवाळे नंतर प्रत्येकाचा नंबर येईल. ठीक आहे, जयदीप. झालं काय? झालं? ओके, चलो आगे बढ़ते. घेतलं का? ये 30% को मत भूलो. एंड दिस इज एन एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. तो दोस्तों
यहाँ पे ना प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है। सलाइवरी ग्लैंड में ओनली द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑकर इन सलाइवरी। प्रोटीन का डाइजेशन उसके लिए एंजाइम ही नहीं है, उसके पास उसके लिए एंजाइम ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जरा लक्ष्य दिया था ऐसा थोड़ा। स्लाइड नंबर 2 दोस्तों, दैट इज एक्शन ऑफ लाइसोजाइम। ये जो जाइम का मतलब होता है एंजाइम, कभी भी याद रखो। लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों? इट इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज, कहां पे होगा दोस्तों? सलाइवा एज वेल एज, और कहां पे है? ओके, कहां कहां पे पाया जाता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट। लाइसोजाइम इट इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ओके, एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रेजेंट इन दोस्तों, प्रेजेंट इन सलाइवा, present in saliva. Now it kill the bacteria, it kills bacteria, ये बैक्टीरिया को किल करता है। it kill bacteria by causing breakdown of, इसका एक्शन क्या है ये भी पूछा जाता है। it by causing breakdown of, that is peptidoglycan cell wall, by causing breakdown of peptidoglycan cell wall होती है बैक्टीरिया में। मैंने बोला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, पेप्टिडोग्लाइकेन नाम की एक सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसको ब्रेक डाउन करता है ये लाइसोजाइम। ओके, और इट बैक्टीरिया को किल करता है। मान लो ये है बैक्टीरिया, उसकी ये है पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। दिस इज एन पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये है उसकी पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, किसकी? बैक्टीरिया की। मान लो बैक्टीरिया सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मान लो यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो नहीं होता है, मान लो न्यूक्लियर है, डबल स्टैंडर्ड। तो ये है दोस्तों, दैट इज ओके लिविंग बैक्टीरिया। और ये है लाइसोजाइम, और इस लाइसोजाइम में, ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल है, ये वाली, दिस इज एन पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, ये वाली। ओके, व्हाट इज दिस? ये होता है सपोज मान लो न्यूक्लियस, और दोस्तों ये है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ब्लू वाली, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है? इट कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ दिस पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सुनो लाइक दिस। ओके, ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अभी भी है, न्यूक्लियोइड भी होता है बैक्टीरिया में, पर ये जो सेल वॉल है ये ब्रेक हुई है। सपोज मान लो ये जो सेल वॉल है दोस्तों, दैट सेल वॉल इज ब्रोकन डाउन, और उसकी वजह से इसका जो है इम्बैलेंस जो है, कुछ भी पार्टिकल अंदर आने लगते हैं, सेल वॉल प्रॉपर से शेप वगैरह मेंटेन नहीं होता है। तो ये दोस्तों ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल, और इसकी वजह से फिर ये बैक्टीरिया की डेथ हो जाएंगी। सपोज दिस इज एन डेड बैक्टीरिया, तो ये काम करता है लाइसोजाइम, ये काम करता है दोस्तों लाइसोजाइम। लक्ष्य, so it is antibacterial agent present in saliva and tears. डोळ्यातून जे पाणी येतं ना त्याच्यामध्ये पण आहे, एमसीक्यू। ये है लाइसोजाइम दोस्तों। दिस इज स्लाइड नंबर 2। समझते हैं? यस और नो? यस और नो? समझते का? जरा लक्ष दें। ओके, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है बेटा। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है।
Okay, pseudopeptidoglycan की cell wall is present in, okay, that is you archaebacteria. जयदीप झालं का बेटा? जयदीप झालं. ओके चलो चालते. ओके डन, आगे बढ़ते हैं. नाउ अभी व्हाट इज द रोल ऑफ फायरिंग्स? अभी ये सब करने के बाद दोस्तों दैट इज बोलस नाम का फूड बनता है. बोलस नाम का एक जो भी सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसे कहते हैं बोलस. कहां पे? दैट बोलस इज ओके पुश्ड डाउन इनटू द फायरिंग्स एंड दोस्तों देन वाया इसोफेगस होता क्या है? दैट इज रोल ऑफ दोस्तों pharynx and esophagus. Role of pharynx and esophagus in digestion. So answer is they do not carry out the digestion of food as they do not have enzyme. Okay, they do not. Answer is no, they do not carry out digestion. उनको कोई भी digestion नहीं करते हैं. They do not carry out digestion as they do not have any enzyme, as they do not release or have any enzymes. ये कल भी मैंने बोला था. ये जो होते हैं दोस्तों that is pharynx or esophagus, that just help in transport of food from oral cavity to stomach. They help in ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खास करके बोलस. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो माउथ में फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं और वो एक जगह पे आते हैं उसे कहते हैं बोलस. दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू इसोफेगस. नंबर टू, सॉरी, फ्रॉम ओरल कैविटी टू दैट इज stomach. Now जो oral cavity esophagus दोस्तों, there is a concept of peristalsis. Now what is the concept of peristalsis? Peristalsis क्या होता है? Pharynx have skeletal muscle और involuntary organ. esophagus का भी upper वाला part skeletal muscle होते हैं और नीचे वाले part में esophagus के smooth muscle होते हैं. Now ये peristalsis क्या है दोस्तों? These are the waves of muscular contraction, okay, and food are transported with the help of this peristalsis. These are the waves of muscular contraction. याद रखो, these are peristalsis means these are waves of muscular contraction. एक के बाद एक muscular contraction के waves होते हैं, okay, along the esophagus, उसे कहते हैं दोस्तों along the esophagus. इसे कहा जाता है peristalsis. along the esophagus इसे कहा जाता है peristalsis. waves of muscular contractions along the esophagus उसे कहा जाता है peristalsis. तो ये and food is transported, okay, it help in, ये जो peristalsis होता है it help in दोस्तों, help in transport of food. it help in transport of food. Now please pay attention. इसका मतलब क्या है? इट हेल्प इन ट्रान्सपोर्ट ऑफ फूड. मतलब तुम्ही कधी सापाला बेंडकी गिळलेलं पाहिलंय का कधी? त्याच्यामध्ये ते पेरिस्टाल्सिसच असतं. ती हळूहळू पुढे जात राहते. समजून घ्या काय कॉन्सेप्ट आहे. पेरिस्टाल्सिस म्हणजे काय है? सपोज ये है इसोफेगस. ये दोस्तों इसोफेगस है. मैं आपको समझाता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है पेरिस्टाल्सिस का. ये इसोफेगस. नाउ यहाँ पे है ये बोलस, फूड पार्टिकल्स, फूड. नाउ अगर ये यहाँ पे आता है तो यहाँ के जो मसल्स है ये वाले, ये थोड़े से ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे लाइक दिस. ये वाले ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे और फिर ये बोलस यहाँ पे आ जाएगा. ओके, ये बोलस यहाँ पे आ जाएगा. नाउ और ये आ गया सपोज मान लो यहाँ पे, इसलिए ये हो गए रिलैक्स. फिर दोस्तों मान लो ये है इसोफेगस. अभी वो थोड़ा सा आगे जाने वाला है तो आगे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और जो ये वाला पार्ट है पिछले वाला वो नॉर्मल हो जाएगा. ये नॉर्मल हो जाएगा. ऐसे वेव्स चल रहे हैं. फिर फूड थोड़ा सा आगे गया
और फूड थोड़ा सा आगे गया दोस्तों, फूड पार्टिकल जो है थोड़े से आगे गए तो ये वाला पार्ट फिर डायलेट हो जाएगा, पिछला वाला पार्ट फिर से नॉर्मल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ये नॉर्मल। फिर थोड़ा सा फूड और आगे गया, ओके, स्टमक की तरफ फूड बढ़ रहा है दोस्तों, स्टमक की तरफ फूड बढ़ रहा है, फिर ये पार्ट जहां पे फूड है वो पार्ट थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और फिर नॉर्मली। तो दीज आर द वेव्स ऑफ, दीज आर दोस्तों वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये ऐसे वेव्स होते हैं ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर द वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, याद रखो। Or they help in, they are run along the peristal esophagus, they are also present in stomach and they are also present in small intestine and large intestine. Okay, ये pharynx में नहीं होते हैं, esophagus, stomach, small intestine, large intestine में, तो खास करके ज्यादा esophagus में। So these are the waves of muscular contraction, okay, and which help in transport of food. समझते हैं? Are you getting me or not? The concept of peristalsis. Are you getting me or not? The concept of peristalsis. ये वेव, फिर दोस्तों ये वेव छोटे, ये वेव आगे 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 यानी नीचे 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 जा रही, फिर थोड़ा दूसऱ्या घासाला परत हे असं दुसरी वेव, तिसऱ्या घासाला तिसरी वेव, चौथ्या घासाला चौथी वेव, समझते? ओके, नाउ हम पानी भी पी रहे तभी पेरिस्टालसिस होने वाला है। हम जब पानी भी पी रहे दोस्तों तो पानी में इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि पानी फ्लूइड है तो वो इजीली अंदर जाएगा, पानी में इतना नहीं होगा क्योंकि वो फ्लूइड है तो इजीली पास हो सकता है। ओके, मगर हम कोई सेमी फ्लूइड ले रहे हैं या सेमी सॉलिड सब्सटेंस खा रहे हैं तो ये पेरिस्टालसिस होने वाला है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो दिस इज द रोल ऑफ फेरिंग्स एंड एसोफेगस। फेरिंग्स का काम है, फेरिंग्स दोस्तों ये मस्कुलर ऑर्गन है और फेरिंग्स में वॉलंटरी मसल होते हैं। ओके, काही गोष्ट गिळायची का नाही हे आपल्या हातात आहे, हे आपल्या हातात आहे। सॉल्विंग इज अ वॉलंटरी फंक्शन, याद रखो कभी भी। ओके, स्क्रीनशॉट जयदीप, स्क्रीनशॉट। ओके, वोमिटिंग के वक्त ये उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स होता है। वोमिटिंग है सिलेबस में, लास्ट वाला पार्ट है, बाद में बात करें। घेतला का स्क्रीनशॉट? हाँ। नाउ दोस्तों, तो ये फूड जो आया है, मान लो, समझ लो इस बात को, दैट इज ओके, सो दिस इज द रोल, बट दे डू नॉट हेल्प इन डाइजेशन, मीन्स डाइजेशन में कोई ऐसा सब्सटेंस इनमें ब्रेक डाउन नहीं होता है। बट जब भी फूड दोस्तों इसोफेगस द्वारा स्टमक में जाता है, ओके, इट्स एंट्री इज रेगुलेटेड बाय गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ये भी मैंने कहा था। ओके, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ दोस्तों गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर एट द इसोफेगस एंड स्टमक। मान लो ये सिनारियो कुछ ऐसा है, ओके, मान लो ये सिनारियो कुछ ऐसा है, मान लो ये है फेरिंग्स, मानने में क्या जाता है, मान लो, ओके, ये अभी, अब बोलोगे सर ये कैसा इसोफेगस है? ऐसा इसोफेगस इन एक्शन है वो, इसोफेगस इन एक्शन। हाँ, समझ लो, ये इसोफेगस इन एक्शन है, ये पेरिस्टाल, ये फेरिंग्स है ऊपर वाला, पेरिस्टालसिस हो रहा है, एक के बाद एक, ये सब मान लो फूड पार्टिकल है, फास्ट पेरिस्टालसिस हो रहा है। ओके, पेरिस्टालसिस हो रहा है दोस्तों, मान लो, ओके, ये चालू है, यहां पे एक स्पिंक्चर है जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, ये क्लोज होता है, ये है दोस्तों, इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर। क्या नाम है उसका? इसका नाम है, दैट इज अ गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जिसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर। और ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर है, और इसका दूसरा नाम है दोस्तों, दैट इज अ कार्डियक स्पिंक्चर, कार्डियक स्पिंक्चर, याद रखो इसका नाम है कार्डियक स्पिंक्चर। ये जो होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर और कार्डियक स्पिंक्चर, ये क्या करता है? इट रेगुलेट द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम इसोफेगस एट द एंड स्टमक। नाउ ये दोस्तों स्टमक, ये है डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट,
ये है इसोफेगस इन एक्शन, इसोफेगस इन एक्शन, और ये वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। नाउ ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है और जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, कहां पे है? एट द जंक्शन ऑफ एमसीक्यू, एट द जंक्शन ऑफ एमसीक्यू, एट द जंक्शन ऑफ दोस्तों इसोफेगस, एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड, एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक। और ये क्या करता है दोस्तों? इट प्रिवेंट द, अभी जब फूड यहाँ पे आएगा स्टमक में तो इससे वो ओपन होता है और फूड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस इनटू इसोफेगस। ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि इसोफेगस ओपन इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, ओके, और जिसका नाम है दोस्तों कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। कार्डियक स्फिंक्टर ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट, दोस्तों ये क्या करता है, दिखता है ना, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ, बैकवर्ड एंट्री ऑफ फूड और गैस्ट्रिक जूस इनटू इसोफेगस। इसका काम क्या है? इट प्रिवेंट दोस्तों, इट रेगुलेट, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो बात करेंगे, इट रेगुलेट, इट रेगुलेट, that is it regulate, okay, entry of food, it regulate entry of food from check point है from esophagus, from esophagus to stomach। ये कितना कैसे जाएगा फूड, ये सब होता है। और ऑल्सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट, वापस फूड नहीं जाने देता, प्रिवेंट, और ये क्लोज हो जाएगा, बैकवर्ड फ्लो ऑफ, बैकवर्ड वापस, बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस एंड फूड, इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फूड इनटू इसोफेगस, इनटू इसोफेगस, इनटू इसोफेगस फ्रॉम स्टमक। जरा लक्ष द्या काय कळायला येतं बघा, लक्षात, स्टमक मधनं वापस तो फूड इकडं तर येत आहे, ठीक आहे, हे ठीक आहे, पण वापस जाऊ देत नाही। इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फूड इनटू इसोफेगस फ्रॉम स्टमक। ये होने नहीं देता, ये होने नहीं देता। कौन? दैट इज अ गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। दोस्तों एक कंडीशन आती है जिसका नाम है हार्ट बर्न, हार्ट बर्न। कोई हार्ट बर्न नहीं होता है, पर नाम है, या फिर उसे कहा जाता है एसिडिटी। क्या है मैं आपको समझाता हूं। हार्ट बर्न और एसिडिटी क्या है? ये हार्ट बर्न इसकी वजह से होता है दोस्तों, इट इज अ रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन म्हणजे ये गैस्ट्रिक फूड जो है, स्टमक हार्ट बर्न, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्या होता है। हार्ट बर्न की कंडीशन समझो। सपोज ये है दोस्तों स्टमक, ये है स्टमक, और स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो गैस्ट्रिक जूस स्टमक का, ओके, जिसमें फूड है, एसिड है, सब है, वो ये लूज होने के कारण, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर लूज होने के कारण वो इसोफेगस में आ जाना। और ये जब एसिड इसोफेगस में आता है तो इसोफेगस दोस्तों के जो वॉल है, इसोफेगस का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरिटेट होने लगता है और एसिडिटी होने लगती है। और ये दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, दिस इज एन गैस्ट्रिक जूस, उसमें होता है एसिड, आपको पता होना चाहिए उसमें एसिड है, HCl। दोस्तों ये है स्टमक, ये कौन सा पार्ट है? सपोज मान लो ये है स्टमक। और रिगर्जिटेशन जब होता है, ये जो फूड, सपोज ये जो गैस्ट्रिक जूस एंड फूड है जब इसोफेगस में जाता है तो इसोफेगस का जो है दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन वो इरिटेबल होता है, उसको पेन होता है, और उसी को कहते हैं हार्ट बर्न और एसिडिटी, उसी को कहते हैं हार्ट बर्न और एसिडिटी। व्हाट इज द हार्ट बर्न और एसिडिटी दोस्तों? इट इज अ रिगर्जिटेशन ऑफ gastric juice and food into the esophagus. It is regurgitation, regurgitation. It is a regurgitation of, it is a regurgitation of gastric juice and food. Gastric juice, okay, gastric juice लिखता हूं along with food into the इसोफेगस, इसोफेगस, ओके। और ये जो पेन होता है, जलजल होने म्हणतात त्याला मराठीत, जलजल व्हायला, इट ऑकर, यहाँ पे हार्ट भी है दोस्तों लेफ्ट साइड में, तो हार्ट के
नजदीक ये पेन होता है तो बहुत सारे लोगों की हार्ट ही बर्न हो रहा है, क्योंकि सबको इसोफेगस के बारे में किसी को पता नहीं है, हार्ट के बारे में सबको पता है। ओके, दिल जो है ना, इसके ऊपर सबको पता है दिल क्या है ना, ऑल दैट। पर इसोफेगस के बारे में थोड़ी, इसोफेगस के ऊपर थोड़ी गाने लिखे हैं किसी ने, दिल के ऊपर कितने भी गाने हैं, तो हार्ट सभी को पता है। तो बहुत सारे पेशेंट को लगा हार्ट ही बर्न हो रहा है, वही ज्यादा काम करता है, तो नाम ले लिया हार्ट बर्न। और एक्चुअली वो इसोफेगस का पेन है ड्यू टू द एंट्री ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक इनटू द इसोफेगस। इट इज अ रिगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इनटू इसोफेगस। ये होता है हार्ट बर्न और एसिडिटी, और इट कॉजेस पेन, इट कॉजेस ओके चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। तो इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज हार्ट बर्न और एसिडिटी। आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझे? एंड दिस इज इन स्लाइड नंबर 3, बात कर रहे हैं रोल ऑफ इसोफेगस। तो रोल है गैस्ट्रो, इसोफेगस का रोल है दोस्तों पेरिस्टालसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक। और यहाँ पे फिर जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसका काम है रेगुलेशन ऑफ फूड एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द स्टमक, और आल्सो प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस। बट ये हार्ट बर्न और एसिडिटी क्यों होता है दोस्तों? इट ऑकर्स ड्यू टू लूजनिंग हो जाएगा, लूजनिंग ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, दिस नसल तो जस्ट वेट करा, जेई स्फिंक्टर लूज हो जाता है। इट इज ऑकर बिकॉज ऑफ लूजनिंग ऑफ, जो टाइट है, जितना टाइट होना चाहिए उतना टाइट नहीं है, वो लूज होने की वजह से हार्ट बर्न और एसिडिटी होती है। और ये लूज कब होता है? जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा चाय या फिर टी कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ओके दैट कॉजेस अल्कोहल, स्मोकिंग, एंड अगेन दोस्तों लेट नाइट ओके जागणं वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी कॉजेस लूजनिंग ऑफ दिस गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, दे स्टिमुलेट द लूजनिंग ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और फिर स्टमक का कंटिन्यूस इसोफेगस में आएगा और वो पेन करेगा। यह है एसिडिटी, हार्ट बर्न। दिस इज द कॉन्सेप्ट ओके। इनो में एंटी एसिड होते हैं, बस कुछ नहीं बाकी। इनो में एंटी एसिड होते, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते, ठीक है? एंटी एसिड केमिकल असतात त्याच्यामध्ये, ते न्यूट्रलाइज करतात, ठीक है? फिनिश। जयदीप स्क्रीनशॉट घेतला का? आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट घेतला का बेटा? जयदीप स्क्रीनशॉट घेतला का? आता नीट लक्ष द्या, आता स्टमक बद्दल बोलूया। स्टमक, वाव, ये सबको कंसेप्ट क्लियर है? अभी मान लो कि किसी को एसिडिटी हुई है, तो इसका मतलब उसका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हुआ है, समझे? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हुआ है उस दिन के लिए, तो उसके दिन। और बहुत सारे लोगों को ना हर 8 दिन में, 4 दिन में एसिडिटी होती है, तो ये स्फिंक्टर बहुत ज्यादा लूज होता है। ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर, आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की है उसके ऊपर है ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। आगे बात करते हैं स्टमक की दोस्तों। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ओके, मजा आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं? ओके, तो दोस्तों इनो कैसे काम करता है? तो इनो में एंटासिड है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो पेन कम होता है, नंबर 1। कुछ टैबलेट होते हैं, शायद आपको नाम पता होगा, ओमेज कैप्सूल है, ओमेज डी ओके, ओमेप्रेजोल नाम है जैसे, वो ना एसिड ही रिलीज नहीं होने देते स्टमक में से। और कभी भी एसिडिटी के लिए हम जब एंटासिड नाम की एक टैबलेट लेते हैं, तो खाने से पहले लेने का है आधा घंटा। ये हमेशा याद रखो, डॉक्टर भी बोलते हैं पर फिर बोल रहा हूं, जब भी हम एसिडिटी की टैबलेट लेते हैं, तो जब हम खाना खाने वाले उससे आधा घंटा लेना होता है। नाउ दोस्तों, वाओ, दैट इज रोल ऑफ स्टमक, ओके, और डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, ऐसे बात करते हैं। दैट इज टाइटल लिखते दोस्तों, स्लाइड नंबर 4 है आई थिंक, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, digestion of food in stomach. Now please pay attention, just wait. Now दोस्तों, that mucosa of stomach have gastric glands. आपको पता है ना कि food in stomach, food is stored for 4 to 5 hours. In stomach food is stored
फॉर, ये फेमस एमसीक्यू है, कितने घंटे के लिए रहता है? फॉर 4 to 5 आवर्स के लिए, और उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक एम्प्टी हो जाता है दोस्तों। जब मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में था घाटी में और हम पोस्टमार्टम करते थे, तो स्टमक में अगर फूड है तो इसका मतलब डेथ खाना खाने के बाद विद इन 4 to 5 आवर्स हुई है। कॉन्सेप्ट को समझ लो, अगर स्टमक में फूड अभी भी है तो जो डेथ हुई है, जो अभी भी जो भी कुछ है डेड बॉडी, उसकी डेथ खाना खाने के बाद विद इन 4 to 5 आवर्स हुई है। और स्टमक में कुछ खाना नहीं है तो फिर मान लो खाना खाने के नातेवाईक सांगतात ना स्टोरी, जेवण केलं बाहेर गेले आणि नंतर आलेच नाहीत, म्हणजे जेवण केलं हे कन्फर्म आहे, बाहेर गेले आणि मग ते जेवण स्टमक मध्ये झालं म्हणजे डेथ 4-5 तासाच्या आतच झाली, हे गेस आहेत। स्टमक इज इन स्टमक फूड इज स्टोर्ड फॉर 4 to 5 आवर्स। दोस्तों म्यूकोजा ऑफ स्टमक, जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा ऑफ स्टमक, स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दोस्तों हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड विद देयर सिक्रेशन, सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विद देयर सिक्रेशन। मैं आपको समझाना चाहता हूं, cells of gastric glands, okay, with their secretion, just wait। 3 important gland है दोस्तों। नंबर 1 that is sorry cells, 3 important cell है, that is a mucous neck cell, mucous neck cell, इसका काम है म्यूकस सिक्रेट करना, म्यूकस नेक सेल्स दोस्तों, ये जो है इट सीक्रेट म्यूकस नेक सेल, ओके, इट सीक्रेट म्यूकस, इट सीक्रेट्स म्यूकस। म्यूकस क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन कंटेनिंग फ्लूइड होता है which help in which lubrication as well as it prevent the effect of acid। म्यूकस शेंबडा सारखा आहे, चिकट चिकट जेलेटिनस आहे, लक्षात म्यूकस, ओके। नाउ इट सीक्रेट म्यूकस, उसका नाम है म्यूकस नेक सेल। फिर दोस्तों 2 नंबर पे आते हैं जिनका नाम है, याद रखो, चीफ सेल। चीफ सेल ये मेन सेल है, चीफ सेल, और जिनका नाम है ज़ाइमोजेनिक सेल, ज़ाइमोजेनिक सेल, चीफ सेल ज़ाइमोजेनिक सेल। इट सीक्रेट एन एंजाइम दोस्तों जिसका नाम है पेप्सिनोजन। जब भी ओजन लगेगा तो वो इनएक्टिव एंजाइम है, जिसके पीछे ये ऐसा ओजन लगा है इसका मतलब ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। ओजन ये रिलीज करता है चीफ सेल और दोस्तों ज़ाइमोजेनिक सेल। अरे ज़ाइमोजन मींस इनएक्टिव एंजाइम, और ज़ाइमोजन मींस इनएक्टिव एंजाइम, और वो पेप्सिनोजन रिलीज करता है। और 3 नंबर के सेल है जिनका नाम है पैराइटल सेल, पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये 2 चीजें रिलीज करता है, एक है दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और दूसरा है दोस्तों इंट्रिंसिक फैक्टर। अब क्या सेल, मैं जस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर लिखता हूं, ओके, ये इतने है। तो म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल और ज़ाइमोजेनिक सेल, पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल, दैट इज HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। स्क्रीनशॉट। तो समझून घ्या, ये स्टमक फैमिली दोस्तों, मैं आपको स्टमक फैमिली की स्टोरी सुनाऊंगा अभी। स्क्रीनशॉट जयदेव। नाउ उस स्टमक फैमिली में लक्षात ठेवा, तिथं 3 आई आहे, 3 माँ है, 3 सुना है त्या फैमिली मध्ये, लक्षात ठेवा। एकीचं नाव है म्यूकस नेक सेल, दूसरी का नाम है चीफ सेल और तीसरी का नाम है पैराइटल सेल। म्यूकस नेक सेल के बच्चे का नाम है, उसका एक लड़का है, उसका नाम है म्यूकस। एक लहान बाळ आहे, कायम शेंबडे आहे, स्टोरी समजून घ्या, कायम शेंबडे, नाकात शेंबूड यायला, त्याला कोणी लक्ष देणं झालं त्याच्याकडं। चीफ सेल आहे, चीफ सेल म्हणजे ही मेन आहे, चीफ म्हणजे मेन आहे घरातली, घराच्या तिजोरीच्या, हिंदी त्या ज्या डेली सोप असतात त्याच्यात जर सांगितलं तर घराच्या तिजोरीच्या चाब्या हिच्याकडे, चीफ सेलकडे, पण ती सगळ्यावर रुबाब झाडत असते, मी मेन आहे, मेन सून आहे, पण तिचा मुलगा हा एकदम इनएक्टिव्ह आहे, पेप्सिनोजन। काय माहिती, तो दुसऱ्या रुबाब झापते म्हणून मुलगा एकदम इनएक्टिव्ह आहे, असं असतं मालिकेमध्ये कधी कधी। आणि एखादी गरीब असते, तिचे मुलं ऍक्टिव्ह असतात। ही पैराइटल सेल, हिला 2 मुलं आहेत, एक त्याच्या मोठ्या भावाचं नाव HCl, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, HCl पैराइटल सेल,
ती एक सून आहे, तिला 2 मुलं, HCl, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, एकदम डेंजर, एकदम डेंजर, कायम गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड, रॅगेट, ठीक आहे. तर जरा काय झालं की मारून टाकेन, तोडून टाकेन, फुकवून टाकेन, जळून टाकेन, फेकून देईन, ओके, सगळ्या घराला आग लावून टाकेन, कारण त्याचं नेचरच तसं आहे, HCl. ओके, इट डैमेज द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट डैमेज द म्यूकस मेम्ब्रेन. और फिर ये है अपना इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये चॉकलेट हीरो है इस पूरे फैमिली का, ओके, इतना सुंदर दिखता है, इतना स्मार्ट है, ओके, और ये हीरो है पूरा, ओके, एकदम खतरनाक, उसके पास गाड़ी है, बाइक है, सब, और उसका काम क्या है, ठीक है, सुबह उठना, नाश्ता करना, फ्रेश हो जाना, ओके, नाश्ता करना और गाड़ी को किक मार के किसी भी चौराहे पे जाके हाय हेलो, आने वाले जो लोग होते हैं, आने आने जाने वाले जो लोग हैं उसको, खास करके पर्टिकुलर ग्रुप को हाय हेलो करना, ये चॉकलेट हीरो है, आमिर खान है इस फैमिली का. इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये HCl थोडासा रागीट आहे, फुकून टाकीन, जळून टाकीन, मरून टाकीन, तोडून टाकीन. हा शेमडा आहे म्यूकस, स्टोरी सांगतोय सगळ्यांच्या लक्षात घ्या. हा शेमडा आहे, कायम शेंबुड्याला, एवढा शेंबूड एवढा आहे की अख्खं घर त्याने सारून टाकले शेंबडाने. दैट म्यूकस फॉर्म अ लेयर ओवर द म्यूकोजा, ये म्यूकस उसने एक म्यूकोजा के ऊपर एक लेयर बना लिया है, उसकी वजह से HCl का कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हो रहा है, म्यूकोजा के ऊपर. और ये दूसरा है पेप्सिनोजन, वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. चलो इस फैमिली की स्टोरी, ये कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे. ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट जयदीप, स्क्रीनशॉट, चलो इसके बारे में जानते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. 2 स्टोरी बताएंगे आज, ओके, चलो हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. समझे आप कौन से सेल क्या रिलीज कर रहे हैं, मैंने बोला है कौन से सेल क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, ओके. स्टमक फैमिली, नाम क्या है स्टोरी का, स्टमक फैमिली, याद रखो क्या नाम है, दैट इज, स्टोरी का नाम है स्टमक फैमिली. और इनकी ये स्टोरी, हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर. और स्टमक फैमिली में दोस्तों याद रखो, स्टमक फैमिली में, ओके, 3 बहु आहेत असं समजून घ्या, ओके. ये है दोस्तों म्यूकस नेक सेल, ये क्या है, कुठं लिहू आता, सॉरी, जरा लक्षात आहे, अरे सॉरी, जरा लक्षात आहे, ये है म्यूकस नेक सेल, ये है म्यूकस नेक सेल, क्या नाम है उसका, म्यूकस, म्यूकस नेक सेल. नाउ ये जो म्यूकस नेक सेल है, इसके लड़के का नाम है दोस्तों, दैट इज म्यूकस, क्या नाम है, म्यूकस. और धारा लागलेलं त्याच्या नाकातनं, लक्षात ठेवा, ये है अपना म्यूकस, ये है अपना म्यूकस, ओके, ये है म्यूकस, पर अच्छा है, ये है म्यूकस. फिर दोस्तों दूसरी है अपनी, दैट इज अ चीफ सेल, क्या नाम है उसका, चीफ सेल. ये है चीफ सेल जिसका नाम है झाइमोजेनिक सेल, ये चीफ सेल है दोस्तों. असं असतं ना, जेवढी बिंदी मोठी तेवढी डेंजर, हे चीफ सेल आहे, आलं लक्षात. ओके, और ये चीफ सेल है, और इसके लड़के का नाम है दोस्तों पेप्सिनोजेन, और वो इनएक्टिव है. देखा आपने, वो सोया हुआ है, ये है पेप्सिनोजन, ओजन मींस इनएक्टिव है, देखा आपने, सोया हुआ है. और फिर 3 नंबर पे आती है दोस्तों पैराइटल सेल, इसका इतना ज्यादा ये मेन नहीं है, पर पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ये है, ये खुश है, ओके, ये बहुत ही अच्छी है, खुश है दोस्तों, ये है पैराइटल सेल. और ये जो पैराइटल सेल है ना, याद रखो, ये जो पैराइटल सेल है दोस्तों, इसके फिर 2 बेटे हैं, एक है HCl, बहुत ही डेंजर, ये जो HCl है वो बहुत ही डेंजर है दोस्तों, मारून टकिन, फुकुन टकिन, जड़ुन टकिन, ओके, यही लैंग्वेज बोलता है वो, HCl है.
ये सर, ओके, ये HCl है, ओके। और फिर दोस्तों ये अपना हीरो है, ये है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस, ये है अपना हीरो, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस, याद रखो, ओके। ये है हमारा हीरो, इसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर हर एक का रोल मैं बताना चाहूंगा। इंट्रिंसिक फैक्टर ये है दोस्तों HCl, ये है स्टमक फैमिली, याद रखो, दिस इज एन स्टमक फैमिली। ये 3 सेल है और उसके 3 सिक्रेशन है दोस्तों, ये 3 सेल है और 3 सिक्रेशन है। ये HCl इट हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द म्युकोजा, बट दोस्तों कधी कधी कसं असतं ना, एखादं लहान मुलगा आहे, शेमडा आहे, पण ते कधी कधी खूप घरासाठी चांगलं काम करतो, लक्षात ठेवा। वैसे ही ये जो म्यूकस होता है, इतना ज्यादा वो म्यूकस रिलीज कर रहा है, वो म्यूकस नेक सेल, और वो म्यूकस उसने क्या किया है, पूरे म्यूकोजा को स्टमक के, ओके, अपने म्यूकस से कवर कर लिया है। तो HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। और ये सब लोग एक दूसरे के कजिन है, ये सब लोग एक दूसरे के कजिन है, मान लो, ओके। ये है दोस्तों स्टमक फैमिली, और स्टमक फैमिली में ये 3, ओके, लेडीज और उनके बच्चे। नाउ ये जो पेप्सिनोजेन है, ये HCl बड़ा भाई है, तो पेप्सिनोजेन को एक बार ये मिलते बात करते, अरे पेप्सिनोजेन, यार तू हमेशा इनएक्टिव ही रहता है, ऐसा क्या है, ओके, मुझे बोल अगर मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो पेप्सिनोजेन बोलता है, यार क्या बताऊं HCl तेरी स्टोरी, मेरी माँ भले ही घर में पूरा उसका रुतबा या फिर उसका पूरा हुक्म चलाती है, पर गॉड ने मुझे ऐसे बनाया यार, इनएक्टिव बोलना। अरे मैं चलना चाहता हूँ, ओके, दौड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, वो डायलॉग है, उड़ना चाहता हूँ बस रुकना नहीं चाहता, नहीं ना, ओके, एक डायलॉग है मूवी का। चलो, तो बोलता है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रोटीन जो आ रहा है ना उसे ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, पर मुझे ना उसके लिए ना एसिडिक मीडियम चाहिए। तो HCl बोलता है, अरे ये तो मेरे दाहिने हाथ का खेल है, और मैं तो एसिडिक मीडियम बनाने में माहिर हूं, वही तो मेरा काम है, अरे चल मैंने दे दिया तुझको एसिडिक मीडियम, चल हो जाए एक्टिवेट। तो ये जो पेप्सिनोजेन है MCQ, ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन है, दिस इज एन पेप्सिनोजेन, दिस इज एन पेप्सिनोजेन, ओजेन मींस इनएक्टिव, इन प्रेजेंस ऑफ HCl दोस्तों, इन प्रेजेंस ऑफ HCl और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम जो भी है pH, मान लो फॉर एग्जांपल 1.8 pH है, 1.8 बहुत कम, एंड इट बिकम दोस्तों, इट बिकम इनटू एक्टिव एंजाइम, और जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है पेप्सिन, जिसका नाम है पेप्सिन, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ HCl। ये HCl का फंक्शन ये है दोस्तों, HCl का फंक्शन ये है, इट कन्वर्ट दैट इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, दिख रहा है आपको, ये इनएक्टिव एंजाइम है, दैट इज पेप्सिनोजेन, इनटू एक्टिव एंजाइम, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या है दोस्तों, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्लीज पे अटेंशन, ये कैसा एंजाइम है, ये ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन का, इसलिए कहा जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, समझे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये काम है HCl का, याद रखो। HCl और क्या करता है, ये NCERT में नहीं दिया है, पर मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, HCl क्या करता है दोस्तों, वी एब्सॉर्ब आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस, फेरस के फॉर्म में हम आयरन एब्सॉर्ब करते हैं, फेरस मींस Fe2+, फेरिक म्हणजे Fe3+। तो दोस्तों यहां पे लिखता हूं Fe3+ का कन्वर्जन Fe2+ में होता है, वो भी HCl की वजह से होता है, वो भी HCl की वजह से होता है, याद रखो, याद रखो। ये है जहां पे ज्यादा चार्ज है, जो रिच है पॉजिटिव चार्ज से, वो होता है दोस्तों फेरिक, दूसरा काम बता रहा हूं फेरिक। और ये है जो जहां पे कम चार्ज है, वो रस है, यह है फेरस आयन, ये फेरिक आयन का कन्वर्जन फेरस आयन में करना, ये भी HCl का काम है। ऐसा नहीं ते रागीट आहे तर काही काम करत नाही, चांगले चांगले काम करतात, और ये आयन फिर एब्जॉर्ब होता है डिओडेनम में जाके। Are you getting me or not? This is on slide number I think 5. तो म्यूकस का काम हमें पता चल गया, म्यूकस फॉर्म अ लेयर ओवर द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड प्रिवेंट द इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट, प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, ये एसिड है ना, इसकी वजह से
नो HCl का काम क्या है? HCl का काम है कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है? इसका तो कुछ भी काम नहीं। पेप्सिन का क्या काम है? इट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम व्हिच कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स। फिर ये अपना हीरो रहेगा, इस हीरो की स्टोरी सुनाता हूँ। चलो, इज दैट क्लियर? टाइम आहे का झाला? अरे यार टाइम झाला. थांबता का थोडं 5 मिनिट? जबरदस्त आहे, सगळं कळायला लागेल. थांबता 5 मिनिट? 5 मिनिट थांबता. ओके, किंवा उद्या घेऊया, जाऊ दे, उद्या महत्वाचं आहे. ठीक आहे, उद्या घेऊया, जाऊ दे. तुमचं लेक्चर असतं किंवा दुसरं काय असेल उद्या घेऊया, ते बरोबर पण नाहीये. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, याचं डिटेल मध्ये घेऊ उद्याचं. थँक्यू सो मच. थँक्यू थँक्यू. नाही नाही नाही, असू द्या. सो ये है दोस्तों स्टमक फैमिली के 3 सेल और उनके 3 बच्चे. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, यहां पे लिखता हूं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ओके, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैसे करता है उसकी स्टोरी अलग है. विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है कौन? ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ क्या सेल. ये इसकी अलग स्टोरी है, छोटी सी लव स्टोरी है जो स्टमक में होती है, बात करेंगे कल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है, म्यूकस क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ. ओके, स्क्रीनशॉट घेतला का? ओके, पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. आपकी मैं सभी क्वेश्चन लूंगा. पेप्सिन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. इट कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ, लिहून देणार आहे ना, प्रोटीन इंटू प्रोटिओजेस अँड पेप्टोन्स. लिहू नका, मी जे लिहिलं नाही, जे बोलतंय ना ते मी म्हणल्याच्या नंतरच लिहा. मी जे प्रत्येक गोष्ट मी जे बोलतो ते लिहून देतो, त्यामुळे तुम्ही टेन्शन नका घेऊ. आलं लक्षात? असं हवेत बोलत नाही मी, मला माहिती आहे ते हवेत बोललेलं तसंच राहतं, ते विद्यार्थ्याच्या वहीपर्यंत जात नाही, त्याच्या नोटबुक मध्ये ते उतरूच शकत नाही. तुम्ही बोललेलं, तुम्ही बोर्डवर लिहिलेलंच त्याच्या वहीमध्ये उतरतं, ह्याचं मला 101% जाणीव आहे. बोललेलं उतरत नसतं वहीमध्ये, बोर्डवर लिहिलेलं उतरत असतं. काय आहे कॉन्सेप्ट समजून सांगतो, जरा लक्षात द्या. ये है अपना इसोफेगस. बाकीचे ज्याला जायचं त्याला जे कॉन्सेप्ट सांगायला बाकीच्या मुलांना. ये है अपना डिओडेनम, सी शेप्ड, पढ़ते का? सी शेप्ड डिओडेनम. ओके, यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये है स्टमक. नाउ स्टमक में ये अगर HCl है दोस्तों, अगर ये HCl है, HCl, तो इसका इफेक्ट बहुत ही डेंजर होता है. यहाँ पे पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, कोई HCl बनाता है, कोई पेप्सिनोजन बनाता है, कोई म्यूकस बनाता है. तो सपोज जो म्यूकस है, म्यूकस ने क्या किया है? एक लेयर बनाया है, ये है म्यूकस. उसने म्यूकोजा के ऊपर एक लेयर बनाया है, एक प्रोटेक्टिव लेयर. तो उसमें बायकार्बोनेट आयन भी है जो कि अल्कलाइन नेचर होता है, और इस बायकार्बोनेट आयन की वजह से दोस्तों ये HCl का इफेक्ट नहीं होता है. डैमेजिंग जो इफेक्ट है ना म्यूकोजा के ऊपर, हा जो म्हणतो ना तोडून टाकेन फोडून टाकेन, जास्त ऍसिडिटी HCl झाल्याच्या नंतर इथं गॅस्ट्रिक अल्सर, गॅस्ट्राइटिस बसतो बघा. तो ज्यावेळेस हे म्यूकस वगैरे प्रॉपर रिलीज होत नाही. उसने क्या किया है, पूरा आपण घराला काय करतो पावसापासून वाचवण्यासाठी वालपुट्टी कलर देतो ना, घराला वालपुट्टी कलर देतो ना पावसाच्या पाण्यापासून वाचण्यासाठी, सेम आहे. म्यूकसने एक लेयर तयार केला. दिस इज एन ओके लेयर ऑफ म्यूकस ओके ओव्हर दी म्यूकोजा. अरे ह्या म्यूकोजाला नावच, हे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल असतात जास्त, म्हणून म्यूकोजा नाव आहे, म्यूकस मेम्ब्रेन. मग HCl किती येऊन साठला तरी ते खालचे जो लेयर आहे मेन त्याच्यापर्यंत जात नाही. हे म्यूकस त्याला न्यूट्रलाइज करतं, कारण त्याच्यामध्ये बायकार्बोनेट आहे. ओके, सो ये जो है दोस्तों इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ HCl. इसका काम क्या है ये कल मैं बताने वाला हूं. इट न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करता है. दैट इज म्यूकस. समझे? ये है HCl क्या करता है, उसका जो अपना भाई है कजिन, वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन, उसको एक्टिव करता है. ओके, ऐसे फट से, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है. और फिर बचा अपना इंट्रिंसिक फैक्टर, वो विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. कल एक छोटी सी लव स्टोरी बताऊंगा,
अब कल ही बात करेंगे उसके बारे में, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। और फिर बाद में स्टमक में और क्या क्या होता है। रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक जूस है इन्फेंट का, जो बच्चों होते हैं, इन्फेंट मीन्स 1 साल से भी कम वाले बच्चों, जिसकी उम्र 1 साल से कम होने कहते हैं इन्फेंट, उनमें रेनिन होता है, वो भी बात करेंगे डिटेल में। ओके, आपके जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी। जयदीप स्क्रीनशॉट गया बेटा। एमसीक्यू ऑफ द डे लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, एमसीक्यू ऑफ द डे लेते हैं दोस्तों। चलो एमसीक्यू ऑफ द डे। ओके, कल मैंने एमसीक्यू लिया था मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। आज मैं एमसीक्यू लेता हूं, एमसीक्यू का टाइप हो गया दोस्तों डबल फिल इन द ब्लैंक नाम का एमसीक्यू लेता हूं, डबल फिल इन द ब्लैंक। चलो कैसा होता है डबल फिल इन द ब्लैंक, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दैट इज, बघा, a large lymphatic vessels, large lymphatic vessel present, okay, along the villi, a large lymphatic vessel present along the villi in the small intestine, in small intestine is 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 dash is dash, okay, is dash and which is dash and which help in absorption of, which help in absorption of dash। ये हो गया दोस्तों, इसे कहते हैं डबल फिलिंग द ब्लैक एमसीक्यू। नंबर वन, large lymphatic vessel present along the villi in the small intestine is called the dash, okay, and it which help in absorption of dash, उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज कैपिलरी, कैपिलरी एंड दूसरा है दैट इज, दूसरा है दैट इज अ प्रोटीन, दूसरा डबल द फिलिंग का प्रोटीन। नंबर तीन दैट इज अ कैपिलरी, और फिर है दोस्तों दैट इज लिपिड, लिपिड। नंबर तीन, ये नंबर दो है, नंबर दो, नंबर तीन दैट इज अ लैक्टियल, लैक्टियल और which help in absorption of protein, and number चार that is lacteal and which help in absorption of दोस्तों लिपिड। चलो बोलो आंसर, आंसर बोलो। लार्ज लिम्फेटिक वेसल, शिवानी सोचो बेटा, लार्ज लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट along the villi in the small intestine is dash and which help in absorption of, बहुत बढ़िया अर्णव, बहुत ही बढ़िया। तो उसका नाम है दोस्तों, इसे डबल फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू बोलते हैं। इसका नाम है दैट इज, उस वेसल का नाम है लैक्टियल, उसे लैक्टियल बोलते हैं, और व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। ये आंसर है उसका। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ एमसीक्यू दोस्तों, दिस इज एन एमसीक्यू ऑफ द डे, एमसीक्यू ऑफ द डे। आप जब एमसीक्यू ऑफ द डे बनाते हो ना, हमेशा ना वेग टर्म मत यूज करो, स्पेसिफिक टर्म यूज करो, स्पेसिफिक, वेग मत यूज करो, उसमें स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि वो एमसीक्यू का पूरा हवा निकल जाएगा अगर वेग टर्म यूज करोगे। ठीक है, वेग टर्म नहीं, स्पेसिफिक टर्म यूज करो, भले थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, और वो स्पेसिफिक टर्म यूज करो। ठीक है, यह है डबल फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू, यह है डबल फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू। ओके चलो ठीक है। ओके हो गया। बघा आता एक दूसरा प्रश्न घेतो, दूसरा एक प्रश्न बघा, एक्सेप्ट एमसीक्यू होता, एक्सेप्ट एमसीक्यू। ये हो गया, ये हो गया। नाउ
बघा जरा, एक्सेप्ट एमसीक्यू, all of the following, all of the following, all of the following functions, all of the following functions occurs in oral cavity. In oral, all of the functions occur in oral cavity, occur in oral cavity, occur in oral cavity, except, except option 1, that is digestion of carbohydrate, digestion of carbohydrate, number 1. Number 2, that is formation of bolus, formation of bolus by mastication, formation of bolus by mastication, by mastication, 1 2 3, that is दोस्तों release of lysozyme, number 4, that is digestion of protein. चला संगा, ये है एक्सेप्ट एमसीक्यू। संगा सिंपल सा एमसीक्यू दोस्तों, सिंपल सा। क्या है आंसर इसका? बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा एमसीक्यू, दैट इज दिस इज एमसीक्यू। सब होता है पर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता। इससे ये बात एक यहां से सामने आती है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन विच ऑर्गन। चलो बोलो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन विच ऑर्गन? सोचो जरा, सोचो। डाइजेशन, क्या बात है यार, श्रीधर लहाने, वाह, बहुत ही बढ़िया। शिवानी, सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डिम्पल, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे इस एमसीक्यू से हमें एक नोट मिली है दोस्तों, दैट इज नोट, ये हमें नोट मिली है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक। लिखो यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन स्टार्ट इन स्टमक। फिर रुकते हैं, जिनका लेक्चर वो जाए, जस्ट मैं लिख रहा हूं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स स्टार्ट इन स्टमक। ये भी एक एमसीक्यू है, ये भी एक एमसीक्यू है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस इज एन एमसीक्यू ऑफ द डे दोस्तों। आप भी मुझे बना के भेजो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा, कैसा एमसीक्यू अच्छा है, आपको करेक्शन की जरूरत है, ठीक है, वॉइस रिप्लाई दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। वॉइस रिप्लाई आप भेजो बना के, ठीक है, एक ही बना के भेजो, ठीक है। बार करता हूँ, व्हाट्सएप चेक करना, बार कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया वेदिक। चलो रुकते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च सेम, यस 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 ऋतुजा, कार्बोहाइड्रेट बड़ा टर्म है, उसमें एक टाइप होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा टर्म है, उसमें स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, इसलिए तो मैंने जानबूझ के कार्बोहाइड्रेट लिखा है, ठीक है। जयदीप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, जिनको डक्ट है उन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनको डक्ट नहीं है उन्हें कहा जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, समझे।